Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I start with my lecture number 10, which are based on Unit 2, and that lecture is based upon your VHDL Digital System Design for ETC 6th semester student. So today in my lecture I cover various topic, that is different type of delay like inertial delay and transport delay, an effect of inertial delay and transport delay on drivers, and the other one is called a signal driver, multiple drivers, and delta delay. The first one thing start with your, what do you mean by inertial delay? So inertial delay model that will be shown by simple example, that is here we use a buffer, ठीक है, which are came under delay of 10 nanosecond. So we mention here the Z assigning value to with A after 10 nanosecond, or you can say Z can get the value after 10 nanosecond, and the value of A should be assigned to your Z. So in that case we show your input waveform and your output waveforms. So in inertial delay model, the delay often found in a switching circuit, it represents time for which an input value must be stable before the value is allowed to propagate to the output. So in addition, the value appears at the output after specified delay. If the input is not stable for a specified time, no output voltage should be occur. So इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, Z को A की वैल्यू असाइन होगी विद द हेल्प ऑफ सिग्नल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, लेकिन किसके आफ्टर 10 नैनोसेकंड बाद असाइन होगी. तो पहले वो इनपुट की वेवफॉर्म की वैल्यू को चेक करेगा, वो कुछ टाइम के लिए स्टेबल होना जरूरी है. तो ये देखो यहाँ पे वो 5 to 10 ओनली 3 मिली सेकेंड के लिए आपकी स्टेबल है, 8 to 10 यहाँ पे 2 मिली सेकेंड के लिए, वो लगातार स्टेबल नहीं है. तो जब तक आपका आउटपुट में शॉर्ट टाइम के लिए चेंज अगर होता रहेगा तब तक आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. क्लियर. तो उस वैल्यू को चेंज करने, आपको अगर आउटपुट को स्टेबल दिखाना है तो आपकी जो इनपुट है वो उसको कुछ टाइम के लिए स्टेबल होना पड़ेगा, तभी वो आउटपुट पे आएगी. लेकिन देखिए 10 के बाद वो कुछ टाइम के लिए क्या है, स्टेबल है. ठीक है, अगर वो 10 के बाद काफी लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल है तो आपने बोला है ए आफ्टर 10 नैनोसेकंड, तो वो 10 के बाद स्टेबल हुई, लेकिन डिले कितने का है, 10 का. तो 10 में जब 10 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20. इट मीन 20 पे वो आपके आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा. क्लियर. और 20 अगर वो 20 पे इनिशिएट हुआ है, क्लियर, तो अगर नेक्स्ट वैल्यू का चेंज कब तक आया, 30 तक, और 30 और 10 का डिफरेंस क्या है, 20 है. तो जहाँ पे उसने आउटपुट दिखाना शो किया है उसमें वो 20 ऐड कर देंगे, तो 40 तक आपका इंटरवल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा. अगर उसके बीच में चेंजेस आते हैं तो वो आपके आउटपुट को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आपकी इनपुट स्टेबल नहीं हो जाती फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, द आउटपुट इज नॉट स्टेबल इन दैट टाइम, इट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट एट द आउटपुट साइड. बट आफ्टर 10 you can getting the output for a long period of duration must be stable. So that's why we start after 10 you are taking your output. क्लियर. बट 10 के बाद कब आउटपुट लेनी है, उसने लिखा है 10 नैनो सेकंड का डिफरेंस है, तो आप 10 के अंदर 10 ऐड कर देंगे तो यहाँ कितने हो जाएगा, 20 पे वो स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर. अब 20 से लेकर उसको कितने टाइम के लिए स्टेबल रहना है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर डिफरेंस बिटवीन योर चेंज इन आउटपुट. 30 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, 20. 20 में अब 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40. इट मींस अप टू 40 दैट विल बी स्टेबल your output. But in between your input should be changed so many times, like 25, 28, and 30. So in that period your output is not affected by that particular input, so that is called your inertial delay. So in case of your second one is called your transport delay model. Transport delay model, that is a very much important topic for you, that is differ from your inertial delay model. Inertial delay model check whether your input is stable or not. When the input is stable for the long duration of time, the output is transfer in that case. ठीक है, आपकी जैसे ही इनपुट जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए स्टेबल हुई तब आपने आउटपुट देनी स्टार्ट कर दी. ठीक है, लेकिन आपने डिले कितने का दिया, 10 का, तो 10 के बाद वो आउटपुट क्या हो गई है, स्टेबल रह गई है. अब उसको कितने टाइम के लिए स्टेबल रहना है, दैट डिपेंड्स अपॉन, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन योर इनपुट. क्लियर. तो वो 10, 30 और 10 का डिफरेंस रहेगा, 20 आएगा, 20 में हम 20 ऐड कर देंगे, 40 तक वो स्टेबल रहेगा. अगर उसके बीच में अगर इनपुट में चेंज आते हैं तो वो आपके आउटपुट को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे. लेकिन ट्रांसफर डिले जो मॉडल है वो आपका थोड़ा सा डिफर है. वो कैसे डिफर है, आपने वही एग्जांपल लिया बफर which can produce a output. If you use an inertial delay you can use the keyword here inertial. If you use a transport delay you can use the keyword here transport. So by the use of that keyword you can differentiate between two type of delay.
So in that case, we also draw a input waveform. According to input waveform, you can draw your output waveform. So here we show a Z will assigning with value A after 10 nanosecond, but its delay is called your transport delay. Sorry. So in that case, you can see here in the diagram, that is you apply your input, but in that case you are not checking whether your input is stable for which time, for the long duration of time or either for short duration of time. लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने मिली सेकेंड का डिफरेंस दिया हुआ है उसी मिली सेकेंड के डिफरेंस के बाद वो ऐड करके उसको वहीं से स्टार्ट कर देंगे. तो 5 में जब आप 10 ऐड करोगे तो 15 पे वो वेवफॉर्म जैसे उसकी इनपुट की आपको दिखाई दे रही है वैसे ही आउटपुट पे वो वेवफॉर्म स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी. इट मीन्स वो ओनली ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. सो इट्स नेम इज ट्रांसपोर्ट डिले मॉडल. So here we also show example of your AND gate with the transport delay model. We can write the entity for wire 14. Here we only use a wire which can transfer the signal from one point to other. So its name is wire 14. You can mention here wire 2, 3 and so on. And in wire you are having with one input and one output. It means at one terminal you can giving your input, another terminal you can getting your output. So that's why in entity declaration part you can define your port with A is input and Z is output, and last and wire 14. So that part describe your entity declaration. Then you can came with your behavior model style. We can say your architecture body style. In architecture body style, you can again mention the name of the entity, that is wire 14, and let's draw with your inertial or transport delay. You can write here transport either inertial delay. ठीक है, but here we also write a behavior because you can use the word process here. ठीक है, तो प्रोसेस किस पे लगाया आपने, ए पे. तो मैंने पहले भी अपनी प्रोग्रामिंग में कवर किया है, जिस प्रोग्रामिंग के अंदर आपने प्रोसेस स्टेटमेंट यूज की है वो आपका बिहेवियर मॉडल होगा. लेकिन यहाँ पे हम डिले की बात कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोग्राम है वो इनर्शियल और ट्रांसपोर्ट डिले के ऊपर बनाना है. तो आपने यहाँ पे क्या चीज राइट कर दी है, कीवर्ड ट्रांसपोर्ट राइट कर दिया. इट मीन्स आप अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर ट्रांसपोर्ट डिले यूज करेंगे विद बिहेवियर मॉडल स्टाइल ऑफ वायर 14 इज. प्रोसेस आपने इनपुट पे लगाया, इनपुट पर टर्मिनल्स क्या था आपका ए, तो जेड को ट्रांसपोर्ट वैल्यू होगी ए आफ्टर 0.1 मिली सेकेंड. क्लियर, वहां 10 नैनो सेकेंड था, यहाँ पे क्या है 0.1 मिली सेकेंड हो गया है. तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या जाएगा, एंड प्रोसेस, देन एंड वायर फायर विद किससे स्टार्ट किया, ट्रांसपोर्ट से, तो ट्रांसपोर्ट से वो क्या हो जाएगा आपका एंड हो जाएगा. नेक्स्ट यू कैन कम विद योर सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट. So as per your signal assignment statement, you can write here that is a symbol of your signal assignment operator. With the help of that operator, you done the operation on your right hand side operand and assigning the value to your left hand side operand, sorry, and assigning the value to your right hand side operand after some specific delay. ठीक है, so that is the meaning of your signal assignment operator. Here we also write one is called a signal object. Here we write the expression after compute the value of that particular expression, that value assign assigning for that particular operation to your right hand side signal object after some delay value. So here we show number of example which are based upon your signal assignment statement. That is काउंटर विल बी असाइनिंग अ वैल्यू, काउंटर की जो भी वैल्यू इनिशियल होगी उसके अंदर आप 0010 ऐड कर देंगे, उसको कुछ डेल्टा डिले के बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी. ये जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट के बाद आपने लिखा हो आफ्टर सम डिले. अगर उसके अंदर डिले मेंशन नहीं है, इट विल बी केम अंडर योर delta delay. That is a standard delay which is not ignorable because you can design every logic circuit with the help of wires, flip-flop, gate, resistors. So that is a minimum amount of time which is assumption which is assumed to be 0 nanosecond. So every statement that should be executed within delta delay. ठीक है, तो आगे वाली स्टेटमेंट में मैंने टाइम मेंशन किया हुआ है, उसमें मैंने पार कोई एक ऑपरेटर लिया, पार नाम का कोई लाइक ले लिया एग्जांपल, उसके एलिमेंट्स को, उसकी बिट्स को मैंने डीन के साथ क्या करवाया है, एक्सोर करवाया है. अगेन वैल्यू किसको असाइन हो रही है, पार को, लेकिन क्या हो रही है आफ्टर 12 नैनोसेकंड. इट मींस आफ्टर सम डिले. तो यहाँ आपने डिले मेंशन किया हुआ है, तो जिस स्टेटमेंट में आपने डिले मेंशन नहीं किया हुआ वो किसको बाय डिफॉल्ट उठाएगा, डेल्टा डिले को. सो डेल्टा डिले इज कॉल्ड योर डिफॉल्ट डिले. ठीक है, here we also show one example. Here A0 end with A1 and B0 end with B1 and C0 end with C1. So these three of these element operate their function and assigning the value to your Z after 6 nanosecond.
So here we also show a delta delay. आप ये कह सकते हैं, you can share the example of a delta delay. Delta delay is called a default delay, which is very much less. So as per the simulation of any signal assignment statement, every signal assignment statement requires some delay. So that delay is called a delta delay. ठीक है, and its value is equal to your 0 delta. Or also in some books that should be mentioned, that is 0 nanosecond. Suppose here we show one example, that is if you start the simulation of the first, if you use in your program number of signal assignment statement. ठीक है, suppose I will mention here 3 signal assignment statement that should be came under in any programs. So in that case, suppose your counter 1 start execution at 15 nanosecond. Clear, अगर वो 15 नैनो सेकंड पे स्टार्ट करता है और यहाँ पे अगर आप डिले को रिमूव कर देते हैं, यहाँ कोई डिले मेंशन नहीं करते हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूशन करेगी विद डेल्टा डिले, दैट इज 15 नैनो सेकंड प्लस 1 डेल्टा. Here 15 nanosecond plus 1 delta, 15 nanosecond plus 2 delta, and 15 nanosecond plus 3 delta, and so on. Clear? It means उसके कहने का मतलब है कि अगर किसी प्रोग्राम के अंदर that should be part of your behavioral programming, and it should be carry number of sequential statement. So we show here that if that particular statement that is a part of your behavior modeling style, and the first statement will execute at 15 nanosecond, and the later of the statement that should be executed with some delta delay. So that delta delay will be count as per your initial delay, that is 15 nanosecond, and another one that is 15 nanosecond plus 1 delta, and third 15 nanosecond plus 2 delta. If you mention here 4 statement, that will be execute at 15 nanosecond plus 3 delta, and so on. So here we also show example if D as an input, and that should be execute after T plus delta. Clear? It means आपने कोई भी D input दी है, उसके अंदर चेंज आया है at T पे. क्लियर? लेकिन उसका जो आउटपुट पे रिस्पॉन्स मिलेगा, दैट शुड बी रिस्पॉन्स विल बी काउंटेबल आफ्टर सम डिले. सो जहां से उसने इनपुट ट्रांसफर करनी शुरू की है, उसमें आप डेल्टा डिले क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो टी प्लस डेल्टा पे आपके आउटपुट पे चेंज क्या हो जाएगा, अकर हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड योर डेल्टा डिले. सो दैट टाइम विच आर केम अंडर विद योर delta, or that is very much less in case of your any logic circuit design. Clear? So here we mention the theory of theory part of your delta delay, and so आप इसे अच्छे से देख लेना. Next you can come with your signal driver. What do you mean by signal driver? Signal driver that should be assign a value to a function after some specific delay, or that signal drive to produce your output to some to produce the output at the right hand side with effective value. Clear? So इसने क्या मेंशन किया हुआ है कि सिग्नल ड्राइवर्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं, हमें इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी. क्लियर? तो उसने ये कहा हुआ है कि जैसे सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल यहाँ शेयर किया हुआ है तो उसको एक्सप्लेन करूंगी आपको. आपने प्रोसेस में एक रीसेट नाम के सिग्नल ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करवा रखी है. पहले उस रीसेट को 3 वैल्यू गई आफ्टर 5 नैनोसेकंड, देन 21 वैल्यू गई आफ्टर 10 नैनोसेकंड, फिर 14 वैल्यू गई आफ्टर 17 नैनोसेकंड. देन यू कैन नोट लाइक आपने एक वैल्यू असाइन नहीं की है, आपने उसको डिफरेंट वैल्यू असाइन की है एट डिफरेंट टाइम के ऊपर. क्लियर? तो ये इफेक्टिवली अपने रिजल्ट को प्रोड्यूस करवाएगा कि उसने 5 नैनोसेकंड पे क्या प्रोड्यूस करना है, 10 नैनोसेकंड पे क्या आउटपुट पे लेके आना है, 17 नैनोसेकंड पे क्या लेके आना है. तो ये तो एक डेसिमल वैल्यू को असाइन कर रहा है, लेकिन अगर आपने वही चीज किसी गेट्स के थ्रू डिजाइन कर रखी है तो वहां लिखेगा 0 आफ्टर 5 नैनोसेकंड, 1 आफ्टर again 10 nanosecond, and 0 after 17 nanosecond, because in logical configuration you can use only 2 bit, 1 or 0. So also we can write here 1 0 and 0, या इधर 1 0 1. मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने किसी भी आउटपुट को अगर इफेक्टिवली प्रोड्यूस करवाना है एट द आउटपुट पे, तो हमें क्या चाहिए, सिग्नल ड्राइवर चाहिए. सो इसने क्या लिखा है, इसने ये चीज, हाउ द वेवफॉर्म एलिमेंट कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ सिग्नल. सो इट इज ए इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड टू कंसेप्ट ऑफ ड्राइवर. एवरी सिग्नल असाइनमेंट इन अ प्रोसेस क्रिएट अ ड्राइवर फॉर द सिग्नल. यानी कि जो भी सिग्नल असाइनमेंट आपने यूज कर रखा है उसके अंदर आपका एक ड्राइवर होगा. तो यहाँ पे आपका रीसेट क्या है, ड्राइवर है जिसको वैल्यू क्या हो रही है, असाइन हो रही है विद डिफरेंट टाइम्स के ऊपर. सो द ड्राइवर ऑफ सिग्नल होल्ड्स इट्स करंट वैल्यू एंड all its future value as a sequence of one or more transaction. So here the reset will be assigning a value with the help of your current input plus your
प्रीवियस इनपुट्स। सो इसने बोला प्रीवियस, यू कैन से फ्यूचर वैल्यूज। तो फर्स्ट रीसेट को क्या जाएगी, आपकी करंट वैल्यू जाएगी। क्लियर। उसके बाद जितनी भी वैल्यू है वो कुछ ना कुछ डिले के बाद जाएगी, आफ्टर 5 नैनो सेकेंड, आफ्टर 10 नैनो सेकेंड और आफ्टर 17 नैनो सेकेंड। क्लियर। तो पहले वो करंट वैल्यू होगा, उसकी ट्रांजेक्शन करेगा रीसेट को। तो रीसेट वी कैन यूज हियर, दैट इज अ टाइप ऑफ ड्राइवर। क्लियर। तो पहले उसको करंट वैल्यू जाएगी, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ क्या जाएगी, आपकी फ्यूचर वैल्यू जाएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन मस्ट है कि आपका जो टाइम इंटरवल है दैट शुड बी इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। सपोज अगर यहाँ पे 17 पहले हो जाता और 10 बाद में आता, तो ये प्रोग्राम क्या करता उस टाइम पे, 17 वैल्यू तो वो असाइन करवा देता, लेकिन अगर उसके बाद 10 आता है तो इस स्टेटमेंट वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। क्लियर है। तो ये पार्ट मैं आपको नेक्स्ट लेटर पार्ट ऑफ द स्लाइड्स में और भी क्लियर करूंगी। Here we only show how the signal driver, we can say driver, must attain the different value at a specific, at a different time, or you can say you can assigning the effective value to your signal driver with the help of your different time delay। ठीक है। तो इसने यहाँ पे एक एग्जांपल और शो किया है विद द, उसने उसी डिले का, जैसे मान लो आपके दो डिले दो तरह के हैं, ट्रांसपोर्ट डिले और यू कैन से इनर्शियल डिले। तो मैंने यहाँ एग्जांपल शेयर किया है इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिले ऑन सिग्नल ड्राइवर। अब आपका जो अपने ड्राइवर बनाए हैं, क्लियर, उसके ऊपर आपका ट्रांसपोर्ट डिले कैसे काम करेगा। क्लियर। तो मैंने जैसे मान लो अगर मैं स्टेटमेंट को पूरा लिखना चाहती तो वैसे भी लिख सकती थी। कैसे लिखती, आर एक्स डाटा आपका क्या बनता, ड्राइवर बनता, उसको पहले 11 वैल्यू असाइन होती एट 10 नैनो सेकंड पे, फिर 20 असाइन होती 22 नैनो सेकंड पे, फिर 35 असाइन हो रही है 18 नैनो सेकंड पे। इट मींस दैट इज योर करंट वैल्यू एंड टू ऑफ दिस दैट इज कॉल्ड योर फ्यूचर वैल्यू। क्लियर। या फिर सपोज करो अगर यहाँ करंट वैल्यू मेंशन नहीं है, तो जब भी वो असाइनिंग करेगा करंट वैल्यू से करेगा, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू को क्या करता जाएगा, असाइन करता जाएगा। तो यहाँ पे करंट वैल्यू मेंशन नहीं है, तो अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप सिग्नल ड्राइवर यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट करंट वैल्यू वो अपने आप उठाएगा। उसके बाद जो आपने स्टेटमेंट मेंशन कर रखी हैं दैट विल बी बिहेव एज एन फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। तो इस एग्जांपल के थ्रू क्या हुआ, हमने एक आर एक्स डाटा टाइप का ड्राइवर लिया, उसको पहले आपकी करंट वैल्यू असाइन हो रही है। ठीक है। उसके बाद सेकंड वैल्यू असाइन होगी 11 विद ट्रांसपोर्ट डिले एट आफ्टर 10 नैनो सेकेंड। क्लियर। 10 नैनो सेकेंड के बाद उसको दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। ठीक है। फिर 22 पे आपको तीसरी वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपका वन बाय वन चलता रहेगा। लेकिन इसके अंदर एक आपने चीज नोटिस की है ध्यान से, वो क्या आई है, आपके ये दो जो टाइम इंटरवल्स है, मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि आपका टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर वो आपका इस स्टेट पे आके किस में चला गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। वो कैसे करेगा, दैट विल बी शो इन माय नेक्स्ट स्लाइड। तो आपने क्या रखा है, पहले करंट वैल्यू ये वाली, देन 11 और 20 तक आपने एग्जीक्यूशन करके दिखा दी। लेकिन अगर आप 35 के 18 नैनो सेकंड पे करना चाहते हो, तो आपका टाइम जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आपका टाइम डिक्रीज कर रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उस टाइम पे जो आपने आपकी जब ये वाली एग्जीक्यूशन चल रही थी, ठीक है, इट मीन आप इस केस में टाइम एडवांस मान के चलते हो। ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट की एग्जीक्यूशन चलती है तो नेक्स्ट अपने आप ही एडवांसमेंट में आ जाती है स्टेटमेंट। ठीक है। तो अगर आपने 10 नैनो सेकंड की एग्जीक्यूशन की, उसके बाद कितनी की 22, उसके बाद आपका टाइम क्या हो गया है, डिक्रीमेंट में आ गया है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो आपकी डिक्रीमेंट से पहले वाली स्टेटमेंट यानी कि जो एग्जीक्यूशन में है, वो आपकी क्या हो जाएगी, राइट होने के बाद एक टाइम डिलीट हो जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर नए कंटेंट क्या हो जाएंगे, आपके ओवरराइट हो जाएंगे। तो आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहले आपकी करंट वैल्यू होगी, फिर 11, ठीक है, 20 वाली क्या हो गई आपकी, डिलीट हो गई है, और उसके बाद क्या हो गई है 35 एट 18 नैनो सेकंड। तो मैंने अपने ग्राफ में भी यही शो कर रखा है, 20 वाली जो बीच वाली स्टेटमेंट थी वो क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। क्यों, क्योंकि आपका टाइम जो है वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में चला गया है। अगर आपका टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना होकर डिक्रीमेंट ऑर्डर में जा रहा है, तो जहां से वो टाइम डिक्रीमेंट ऑर्डर में गया है उससे पहले वाली जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी वो पहले डिलीट होगी, उसकी जगह ये वाले कंटेंट क्या हो जाएंगे, आपके ओवरराइट हो जाएंगे। क्लियर है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ योर ट्रांसपोर्ट डिले, और यू कैन से इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिले ऑन योर signal driver. So here we also show one example, that is data bus type लिया, ट्रांसपोर्ट डिले की वैल्यू से हमने 01 को असाइन किया एट 5 नैनो सेकंड पे, देन XFA को असाइन किया 10 नैनो सेकंड पे, और यहाँ पे 15 नैनो सेकंड पे। ठीक है। फिर डाटा बस को क्या जा रहा है, XP5 आफ्टर 12 नैनो सेकंड। तो देखो यहाँ पे आपका ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपका टाइम है, आपने फिर ट्रांसपोर्ट डिले मॉडल यूज किया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपने ट्रांसपोर्ट डिले मॉडल यूज किया है
तो आपका आपने सबसे पहले चेक करना है कि टाइम इंटरवल किस ऑर्डर में आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो किस में आ रहा है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो आपको आप उसको वन बाय वन पहले करंट वैल्यू असाइन होगी, देन आपका फर्स्ट क्या है, x01 एलिमेंट कब असाइन होगा, एट 5 नैनोसेकंड विद ट्रांसपोर्ट डिले, देन xfa एट 10 नैनोसेकंड विद ट्रांसपोर्ट डिले 10 नैनोसेकंड, एंड फिर xe8 एट 15 नैनोसेकंड। क्लियर, ठीक है। तो और लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में तो वही चीज आपकी क्या हो रही है, आपकी फंक्शन में एग्जीक्यूट हो रही है। क्लियर। तो इस केस में भी वैसे ही होगा कि अगर मान लो कोई डिले जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो उस टाइम में जो पहले जिस स्टेटमेंट पे आके उसने डिक्रीज किया है उससे पहले वाले जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएंगे और उसकी जगह क्या आ जाएगा, आपका ओवरराइट हो जाएगा। क्लियर। तो मैंने ये एक दो एग्जांपल शो किए हैं तो आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आप पढ़ोगे इफेक्ट ऑफ इनर्शियल डिले ऑन सिंगल ड्राइवर। अब आपका पहले आपने ट्रांसपोर्ट डिले पढ़ा, उसने सिंगल ड्राइवर को कैसे इफेक्ट किया। अब आप करोगे इनर्शियल डिले, जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया है। तो इस और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपली आप यहाँ पे कीवर्ड यूज नहीं किया हुआ इनर्शियल, तो बाय डिफॉल्ट अगर नहीं यूज किया तो वो इनर्शियल डिले मानेगा। क्लियर। लेकिन अगर आप यहाँ कीवर्ड इनर्शियल यूज भी कर दोगे तब भी स्टेटमेंट में कुछ खराबी नहीं होगी। तो वही वही वो भी सेम टाइम से फंक्शन परफॉर्म करेगा। सबसे पहले वो करंट वैल्यू उठाएगा, करंट वैल्यू के बाद क्या करेगा, उसकी करंट वैल्यू क्या है यहाँ पे, उसने क्या लिखा है, द ट्रांजेक्शन 11 एट 10 नैनोसेकंड दैट इज फर्स्ट गेट्स एडेड टू द ड्राइवर। आपने पहली वैल्यू ड्राइवर के अंदर ऐड कर दी है, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या हुई, 22 एट 20 नैनोसेकंड। क्लियर है, ठीक है। और थर्ड causes the 11 at 10 nanosecond transaction of the driver to be deleted. Clear, because of the signal value that is 22 of new transaction is different from here the value of transaction on the driver 11। क्लियर। तो उसने ये बोला है कि अगर आपने इस केस में अगर 22 को असाइन करवाना है तो उसकी वैल्यू डिफर कर रही है, यहाँ टाइम नोटिस नहीं होगा, आपकी वैल्यू नोटिस होगी। तो आपकी अगर वैल्यू डिफर कर रही है उस चीज से, तो उस केस में ये वाले कंटेंट क्या होंगे, आपके डिलीट होंगे, उसकी जगह 22 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले करंट वैल्यू होगी असाइन, उसके बाद करंट के बाद क्या होगा आपका 22 होगा, ना कि 11 होगा। क्लियर है। लेकिन क्योंकि वैल्यू क्या कर रही है आपकी, डिफर कर रही है, तो उसने यहाँ पे ही मेंशन किया हुआ है द सेकंड ट्रांजैक्शन 22 causes the 11 at 10 nanosecond transaction on the driver to be deleted because the signal value that is 22। आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपने इनर्शियल डिले में टाइम नहीं देखना है, वैल्यू को देखना है। अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, उसकी जगह ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको असाइन हो जाएगी। अगर फिर नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट पे भी क्या होगा, आपकी 22 डिलीट हो जाएगी, उसकी जगह क्या राइट हो जाएगा, 33 करंट वैल्यू के बाद। क्लियर। so that is a difference between your inertial delay and your you can say transport delay. I show one example more for your inertial delay, that is आपने एड्रेस बस को वैल्यू असाइन की है 1 आफ्टर 5 नैनोसेकंड, 6 आफ्टर 10 नैनोसेकंड एंड 12 आफ्टर 19 नैनोसेकंड। तो आपने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर। लेकिन इस केस में आपने क्या लिखा है, आपने इन दोनों ड्राइवर्स को कंपेयर किया है, पहले करंट वैल्यू गई, फिर 6 एट 10 नैनोसेकंड, फिर 6 एट 12 नैनोसेकंड, तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, सेम है। क्लियर। और यहाँ क्या है 20 एट 19 नैनोसेकंड। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो वैल्यू कैसे असाइन होगी, तो उसने बोला है द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ये वाली इसको देखेंगे, द फर्स्ट ट्रांजेक्शन 6 एट 10 नैनोसेकंड causes the 12 एट 9। उसने बोला है कि अगर आपकी ये हो रही है एग्जीक्यूट, ठीक है, उसके बाद अगर उसने 10 के बाद क्या आएगा आपका 12 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो सेम है। अगर वैल्यू सेम है तो वैल्यू वही रहेगी, लेकिन उसके बाद वाली ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इनमें सबसे पहले वो करंट वैल्यू लेगा, उसके बाद वो क्या लेगा 1 आफ्टर 5 नैनोसेकंड, उसके बाद 6 आफ्टर 10 नैनोसेकंड, फिर वैल्यू सेम है तो 6 आफ्टर 12 नैनोसेकंड आ जाएगा। तो उसके ये बाद वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिलीट हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो दैट इज अ वन मेजर डिफरेंस। आफ्टर क्या होगा आपका, पहले 12 साइन होगा एट 19 नैनोसेकंड पे, फिर क्या साइन होगा आपका 20 साइन होगा। तो हर चीज का सीक्वेंस होना चाहिए विद वैल्यू एंड विद टाइम। So here we also mention if all transaction on the driver that should be scheduled to occur at after a delay of new transactions are deleted। It means अगर आपने सारी ट्रांजेक्शन को शेड्यूल किया हुआ है, ठीक है, तो एक के बाद दूसरी तभी लिखी जाएगी अगर उनकी वैल्यू डिफर है, तो आप फर्स्ट वैल्यू को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, उसकी जगह सेकंड टाइम पे आप सेकंड वैल्यू को क्या करेंगे, असाइन करेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ न्यू ट्रांजेक्शन इज द सेम एज द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द ड्राइवर देन द न्यू वन विल बी असाइन एट डिफरेंट टाइम। अगर वैल्यू सेम है तो दोनों का टाइम डिफर होगा, ठीक है, जैसे 6 एट
10 नैनो सेकेंड एंड 6 एट 12 नैनो सेकेंड, तो पहले 10 वाली जाएगी, फिर कौन सी जाएगी आपकी 12 वाली जाएगी. इफ द वैल्यू ऑफ नो ट्रांजेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर ट्रांजेक्शन ऑन द ड्राइवर, in that case this transaction are deleted from the driver and the new transaction should be added. Clear? For a signal assignment statement, if the first statement element is added to the driver, all the subsequent waveform element of the signal assignment are also added to the driver. So here we one more example of your delta delay reversed. In that case, you can use number of node gate, and the number of node gate should be connected in series. So the B is not of A and C is not of B and Z is not of C. So also we are also mentioned here three sequential assignment statement. The Z will assigning a value with not of C, and the C assigning with the value of not of B as per the figure, and the B assigning with the value of not of A. So here we write a program for your fast inverter, clear, in which A is input and Z is an output. So that is part your entity declaration, or that is your body part, clear. So here which part is your intermediate? As per my previous programming video, I should also told about the intermediate part will be behave as in a signal. So that's why we mention here signal BC, that will be a bit type. So here that all of the statement delta delay reversed है, रिवाइज्ड इट मतलब कि वो एक कास्केडिंग फॉर्म में आ रहा है. तो अगर फर्स्ट फंक्शन, अगर आपको जो ए वैल्यू है वो किसको असाइन हो रही है, आपकी बी को असाइन हो रही है. अगर वो 10 पे असाइन हुई है, 20 पे असाइन हुई है, तो अगले वाली जो बी की वैल्यू होगी वो कब असाइन होगी, सी को 20+1 डेल्टा पे. फिर सी को कब असाइन नहीं होगी, 20+2 डेल्टा पे, जो मैंने पीछे भी आपको बताया है. फिर जो लास्ट वन जेड को वैल्यू मिलेगी वो कब मिलेगी, 20+3 डेल्टा पे. इट मीन्स ए किस पे काम करेगा, 20+20 यानी कि आपका ए कब काम करे, ए ने वैल्यू पे चेंज कब लेके आया, 20 पे, ठीक है. और ए को बी ने ए की वैल्यू, ए की जो वैल्यू है असाइन होके बी को कब मिली है, एट 20+1 डेल्टा पे, ये वाली 20+2 डेल्टा पे. फिर जेड को कब मिलेगी, 20+3 डेल्टा पे. क्लियर? सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन योर सिंपल मॉडल, और यू कैन से डेल्टा डिले मॉडल, which we can show you with the help of some program. So also we also write a program for your as RS latch. In RS latch you can use two NAND gate, and that should be interconnected with each other. So here the Q क्या है आपका, R NAND Q है, and Q simple Q है, S NAND Q bar है, as per the figure. क्लियर? सो उसने भी इसको डेल्टा का नाम दिया है. तो इसमें भी दो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो डिपेंड करता है कि कब एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रही हैं वो अपनी. ठीक है? तो अगर मान ले Q बार है, तो आपकी Q बार एंड Q दो आउटपुट आ रही हैं. क्लियर? तो अगर Q बार में आपकी आर में दैट डिपेंड्स अपॉन योर आर चेंज. अगर आर में चेंज आया, किस पे आया है, इस इंटरवल पे आ रहा है, तो फर्स्ट इंटरवल के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट चेंज आपको 5 नैनो सेकंड पे मिलेगा. और जो क्यूब आ रहा है वो अपनी फर्स्ट आउटपुट कब चेंज करेगा, 5+ डेल्टा पे, और क्यू कब करेगा, 5+2 डेल्टा पे, एंड सो ऑन. क्लियर? तो वो इस केस में अगर आपकी दो इनपुट है उसमें वो चेंज को नोटिस करेगा. जहां चेंज अकर होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी इनपुट आउटपुट से ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी उस नैनो सेकंड के ऊपर. ठीक है? और पूरी तरह वो आउटपुट पे कब आएगी, तो फर्स्ट आपने स्टेटमेंट में क्यू बार लिख रखा है, फिर क्यू, तो पहले क्यू बार का बनाओगे फिर क्यू को, तो उसमें डेल्टा डिले को हम ऐड कर देंगे. तो आपका करंट एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 5 नैनो सेकंड. तो जब उसको आउटपुट पे मिलेगा तो वो डेल्टा डिले के साथ ऐड हो जाएगा 5+ डेल्टा, और क्यू को 5+2 डेल्टा. Clear? So that is a waveform which we can mention for the clear the difference of your effect of transport delay on your drivers, effect of inertial delay on your driver, and also effect of delta on your driver. Next you can come with your multiple driver, which will also discuss in my resolution function. I will cover in my previous video. So उस वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से बताया है कि what do you mean by resolution function. ठीक है? तो उसमें resolution function को कवर करने के लिए देखिए यहाँ पे आपका सिग्नल ड्राइवर क्या है, आपका Z है. लेकिन Z that is a combination of your two drivers, because in which having two AND gate, that is a one signal driver, or that is a second signal driver. So whenever in any logic circuit diagram, if you use number of driver, so that is will be came under your multiple driver. Then how you can resolve that particular bit which are coming from AND gate and your NOT gate, it means in that case you can write a program for your Z, and Z with a resolving bit also. तो उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपको Z पे दो चीजें मिल रही हैं, एक तो यहाँ से AND होके आ रहा है और एक यहाँ से NOT होके आ रहा है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले आप एंटिटी डिक्लेयर करोगे. एंटिटी डिक्लेयर होगी तो क्या होगा, एंटिटी का नाम क्या लिखा है वही सेम आपने
टू गेट्स की फॉर्म में एग्जांपल शो किया, उसकी 3 इनपुट हैं, ए बी सी एज एन इन बिट एंड जेड एज एन आउट बिट। आपने एंटिटी को एंड कर दिया, यहाँ पे इस पार्ट में एंटिटी क्या हो गई आपकी, डिक्लेयर हो गई है। उसके बाद आप उसका लाइक आर्किटेक्चर पार्ट बनाओगे। आर्किटेक्चर पार्ट में आपने 2 वैल्यू असाइन की, एक एंड की और एक नोट की। तो ए एंड बी हो रहा है आफ्टर 10 नैनो सेकेंड, और नोट ऑफ सी मिल रहा है यहाँ पे आफ्टर 5 नैनो सेकेंड। बट दैट इज अ नोटेड लीगल स्टेटमेंट, बिकॉज क्योंकि आपकी इस फंक्शन में ए बी की वैल्यू चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जो आनी चाहिए, जैसे मान लो 0 0 पे जो आउटपुट मान लिया आई है वो कितने नैनो सेकंड पे मिलेगी, फिर आपने 0 1 किया तो कितने नैनो सेकंड पे मिलेगी, तो उसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे, आपको ड्राइवर बनाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ड्राइवर ना यूज होके एक से 2 ड्राइवर हैं जो एक सिंगल फंक्शन को काम करवा रहे हैं। तो हम इसके लिए कुछ और भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। पहले हमें ये मिलना चाहिए, फिर ये वाला, फिर इन दोनों का एडिशन। क्लियर? तो मैंने क्या लिखा है, जेड को, ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये एंड के लिए है, और जो नीचे वाली है ये नोट के लिए है। ठीक है, फिर दोनों का कंबाइन होके क्या मिला, थर्ड वन। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे वही सेम डेल्टा डिले की, सॉरी ट्रांसपोर्ट डिले मेंशन कीजिए या फिर आप इनिशियल डिले मान के चलिए। तो देखो यहाँ पे मैंने एंड के लिए 1 आफ्टर 2 नैनो सेकेंड, 5 नैनो सेकेंड, 10 नैनो सेकेंड। तो देखो ऑर्डर सबका क्या हो रहा है, फिक्स आ रहा है, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है आपकी, डिफर आ रही है। ठीक है, ऐसे इसमें क्या करोगे, जेड 4 5 एंड 20 वैल्यू अंदर बिट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो ये एंड का हुआ, ये नोट का हुआ। थर्ड वन किसका हो जाएगा, दोनों के कंबाइन का। अगर कंबाइन करोगे तो दोनों वैल्यू या तो ए 1 आएगी या फिर क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर 1 मिलती है तो 10 पे जाएगा, अगर 0 मिलती है तो 20 में जाएगा। सो दीज 3 स्टेटमेंट मस्ट हेल्प फॉर रिजोल्विंग योर बिट at your output function z. So here we also mention 1 at 10 nanosecond, and also you can show the driver 1, driver 2 and driver 3 for addition of these two. So here we resolve a function with the help of your z signal value. Clear? So it means if you as per the logic diagram you can use one or more driver. In that case you can came under your with your multiple driver. So in multiple driver you can get you can assigning the value to your driver, or you can say output function z with the help of your resolving bit, or you can say resolution function. So today I am end my video for this lecture. Thank you very much.